Exercise 6.3, question number 10. So here there are two triangles given, ABC and triangle FEG. So I am reading the question. CD and HG are respectively the bisectors of angle ACB and EGF. CD और HG दोनों bisectors हैं ACB और FGE के, and such that D and H lie on the sides AB and EF. दोनों lie कर रहे हैं. If AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively, if triangle ABC is similar to triangle FEG, these two triangles are given similar, then we have to prove these parts. So here first part, since triangle ABC is similar to triangle FEG, it is given. So triangle angle A equals to angle F, angle B equals to angle E, and angle ACB equals to angle FGE. These all the three properties by which property? CPST, corresponding parts of similar triangles. So we are assuming this equation 1, this one equation 2, but for this equation we are not assuming. Why? Because here we have to prove triangle DCA and triangle EFG, these are similar. So for this, if we half, because these are the bisectors na, CD and GH are the bisectors, so if we multiply by half, so or we can write half of angle ACB equals to half of angle FGE. Can we write it? दोनों में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया ना. अब हाफ ऑफ ACB का हाफ देखिए, ये वाला एंगल भी होगा और ये भी एंगल होगा, हाफ दोनों एंगल होंगे. ऐसे ही FGE का हाफ ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा. क्लियर? तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ ACB को, एक बार हम लिख रहे हैं एंगल ACD. सो एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल FGH, एंगल FGH, और एक बार लिख रहे हैं एंड इधर ये भी हाफ है तो DCB, एंगल BCD और DCB, सो एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE, एंगल HGE. इसका रीज़न दोनों का लिख दो. सिंस CD एंड GH are the bisectors of angle ACB and angle ACB and FGE. Okay. Now for these we are assuming equations 1, 2 assumed, this is equation 3 and this one equation 4. Now here first part we have to prove triangle DCA similar to HGF. So here in triangle DCA and triangle HGF, triangle DCA this one and HGF this one. So here angle A equals to angle F in equation 1. So angle A equals to angle F from equation 1. Now and angle ACD this one equals to angle FGH, it is here equation 3. Angle ACD equals to angle FGH from equation 3. Now so therefore triangles are similar. So therefore triangle DCA similar to triangle HGE, these are similar by AA, similarity criteria. So if these triangles are similar, then their corresponding sides are equal. So ratio we want CD upon GH. See this, CD is this side upon GH this side. So CD upon GH equal to, second is AC upon FG. See here, AC is this side upon FG, AC upon FG. Therefore here it is by CPST. So this is second part also proved. Now for third part, second part तो just एक लाइन का था CPST. Third part we have to prove triangle DCB and HGE. So in triangle DCB and triangle HGE, again see this triangle DCB this one and HGE this one. So here angle B equals to angle E in equation 2. So angle B equals to angle E from equation 2, and one more angle, this one, this angle C, that is angle DCB equal to angle HGE. This is equation 4. Here we proved this one, DCB equal to HGE.
So angle DCB equal to angle HGE. This is from equation 4. From equation 4. Clear? Now these triangles are again similar. So, therefore triangle DCB similar to triangle HGE. By which property? Double A similarity criteria. Okay, so these triangles again similar. Now move to next question, which is question number 11. 11th question is very easy. Clear? So do it at homework. सेम है, डबल ए लग जाएगा. क्लियर? छोड़ता हूँ इसे मैं, ये कर ही लेते हैं. चलिए 11th. So question number 11, there is one triangle. This is triangle A B C and there is a one perpendicular on F on AC. AC पे एक perpendicular है. This one is F. This point is E. Clear? And from A also there is a perpendicular. This one is D. Clear? Now in the given figure, E is a point on side CB produced of isosceles triangle ABC. Here it is given ABC is isosceles triangle. So given triangle ABC is isosceles triangle and which AB equals to AC, where it is given that AB equal to AC given. These two sides are given equal, these one are equal, and AD perpendicular BC and AD perpendicular on BC and EF perpendicular AC, EF perpendicular on AC. To prove, we have to prove that triangle ABD similar to triangle ECF. Triangle ABD, this one, and ECF. So here proof. Here since AB equals to AC, AB equal to AC it is given. That means their opposite angles are equal. So angle C equals to angle B. Angle B, अब एंगल बी में देखिए क्या है, इसमें नाम एक्चुअली लिखना पड़ेगा. तो यहाँ भी एंगल नाम लिखिए ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी. क्लियर? अब क्या हम ए बी सी को ए बी डी लिख सकते हैं? ठीक है, मैं ए सी बी को लिख रहा हूँ. देखो ए सी बी ये एंगल है ना, ए सी बी. मैं इसे लिख रहा हूँ एफ सी ई. मैं इसको लिख रहा हूँ एंगल एफ सी ई. सेम हेयर ए बी सी, ए बी सी है, मैं इसको लिख रहा हूँ ए बी डी. सेम एंगल वही है. अगर हम इसे एक्स एक्स मान लें तो भी बात वही है. ठीक है, एक्स वाई मान लें. सो ये एंगल ए बी डी, इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया. नाउ दीज एंगल्स आर इक्वल एंड टू एंगल्स आर 90. सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ. सो फर्स्ट एंगल एफ सी ई, पहले उसको लिख दो रिवर्स करके. पहले इसको लिख दो एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल एफ सी ई. रिवर्स करके लिख दिया इसको फर्स्ट इक्वेशन को. फ्रॉम इक्वेशन 1. नाउ वन एंगल इज 90. सो एंगल इन ट्राइंगल ए बी डी में कौन सा एंगल है? डी. सो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एफ. ईच 90. सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर. देयरफॉर triangle ABD similar to triangle BD similar to triangle ECF by double A similarity. Now move to question number 12. 12th question is important. Okay, in 12th question, sides AB and AC of two triangles, just like there is a theorem, area ratio theorem, उसी की तरह है अप्रॉक्स. तो इस टाइप से आगे भी क्वेश्चन है. So there are two triangles, triangles A B C and triangle P Q R. This one is D is a midpoint and here also there is a midpoint, median. Yes, it is M. Question is sides AB, BC and median AD of a triangle ABC respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. So here given, firstly I am writing given AD
and PM are the medians, and what is given? Ratio AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AD upon PM. It is given AB, BC and median AD. Okay, it is ratio equal. Prove that. To prove triangle ABC similar to triangle PQR. Now proof. Construction not needed. Say proof. Now in this proof, firstly what is given? Firstly we have given here, since AB upon PQ equals to BC upon QR equals to AD upon PM. So AB upon PQ as it is we are writing. For BC को हम लिख सकते हैं 2BD, and we write it 2BD upon 2QM equals to AD upon PM. 2 से 2 कैंसिल हो गया. ट्वाइस क्यों लिखा? सिंस BC इक्वल टू 2BD एंड QR इक्वल टू 2QM. रीज़न क्या है इसका? M का रीज़न इज सिंस D and M आर द मिड पॉइंट्स, क्योंकि मीडियंस हैं तो वो मिड पॉइंट्स हैं. क्लियर? नाउ अब देखिए इन तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया. AB अपॉन PQ दिस साइड, BD upon QM this side and AD upon PM. That means these two triangles are similar. Therefore, triangle ABD similar to triangle PQM by triple S criteria. Now अगर ये triangle similar है, it means angles भी equal होंगे, तो angle B equals to क्या मिल गया? angle Q. Angle B equal to angle Q, and what is given here? AB upon PQ equals to BC upon QR. इसे इक्वेशन 1 कह दें. सो ये फ्रॉम फर्स्ट में से 2 पार्ट केवल ले लिया हमने. ठीक है, 3 पार्ट्स थे. AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM, तो इसको छोड़ दिया हमने. अब जरा देखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. कैसे? AB अपॉन PQ अपॉन इक्वल टू BC अपॉन QR, दो साइड का रेशियो, एंड इंक्लूडिंग एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q. सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR by SAS criteria. Clear? Now question number 13. Go to 13th question. Okay, here I am writing given part. No, on the next page. 13th question is, there is a triangle ABC. It is A, B, C. Here D is 90. It is 90 degree, and question I am reading. D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. ADC equal to BAC. Okay, this is not 90. This angle equals to this total angle. Okay, so here given angle ADC equals to angle BAC, and we have to prove CA square equals to CB into CD. Now see, CA square equal to CB into CD मीन्स हमें ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे. देखो CA CB CD कहाँ रहा है? CA ई साइड हो गई, CB ये टोटल हो गई, CD ये वाली हो गई. मतलब ये छोटा ट्राइंगल हमें इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर करना है. तो जो बड़ा ट्राइंगल ABC है उसी के साथ हमने उसी की तरह एक स्मॉल ट्राइंगल जो ADC था उसको दोबारा बना लिया. ठीक है, रिक्रिएट किया ट्राइंगल ADC. अब देखो एंगल A किसके इक्वल है? एंगल D के, तो D एंगल ऊपर पहुंच गया. C एंगल कॉमन है दोनों में, तो यहाँ C आ गया. बचा कौन सा पॉइंट? A. एंगल A एंगल D की जगह आ गई. ये एंगल A किसके इक्वल आ गया? D के. क्लियर? और एंगल C कॉमन है ही, ये एंगल इसके इक्वल आ गया. तो ट्राइंगल सिमिलर. नाउ फॉर दिस प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अब ABC की तरह कौन सा बन गया? DAC. कैसे इक्वल हो गई है? देखिए एंगल A किसके इक्वल है? एंगल D के. मीन्स एंगल BAC, फर्स्ट वाला पहले लिखा है तो BAC है. BAC इक्वल टू एंगल ADC. क्लियर? एंगल C इज़ कॉमन, C दोनों में कॉमन है तो एक ही रख रहे हैं. एंगल C इक्वल टू एंगल C.
it is given and it is common. Clear? Now therefore triangle similar, triangle ABC similar to triangle DAC. अभी ट्राइंगल सिमिलर हो गए, हमें रेशियो क्या चाहिए, सी ए स्क्वायर. देखो सी ए वाली साइड है तो सी ए अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो सी ए अपॉन क्या आ जाएगा, सी डी. तो सी ए अपॉन सी डी इक्वल टू, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सी ए स्क्वायर, यानी कि सी ए यहाँ पे चाहिए तभी तो ये सी ए स्क्वायर आएगा. तो अब यहाँ क्या चाहिए, वो सी ए कौन सी ट्राइंगल की साइड है, अपोज नीचे वाले की. तो सी ए इसमें कहाँ आ रहा है, बेस, तो इधर क्या आ रहा है, बी सी या सी बी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी. दिस इज बाई सी पी एस टी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये और 12 इन दो क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न होता है. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिएगा ध्यान से. सो देयर आर टू ट्राइंगल्स. These two triangles are here, triangle A, B, C, and second triangle is P, Q and R. This is R I am drawing here. Now in this triangle AD and PM again medians, same question ही है, बताया था मैंने आपको 12 और ये it is point D, it is point M. Now what is given, sides AB, AC and median AD. So here given median क्या है, AD. तो AD एंड PM आर मीडियंस, सेम रीज़न है, ये आर मीडियंस. और अगर ये मीडियंस, अब रेशियो किसका दिया हुआ देखो, साइड्स AB, AC एंड मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, PR एंड मीडियन PM. क्लियर है, ये रेशियो इक्वल है. AB upon PQ equals to AC upon PR equal to AD upon PM. It is given equal. Now we have to prove. To prove भी सेम है. Triangle ABC similar to triangle PQR. डिफरेंस केवल क्या है, उसमें रेशियो दिया हुआ था यहाँ पे BC upon QR. बेस का रेशियो दिया हुआ था, इस बेस की जगह पे यहाँ पे AC पहुँच गया और इसी क्वेश्चन ये काफ़ी लेंदी हो गया. क्या डिफरेंस आया देखो, अगर हम, क्योंकि एंगल B और एंगल Q तो हम इक्वल ले आएंगे, बट एंगल B और इक्वल Q लाने से कुछ मिलेगा नहीं. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमें जो साइड्स का रेशियो दिया है वो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर है. मीन्स जो इंक्लूडिंग एंगल होगा वो कौन सा होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी. तो हमें एंगल ए और एंगल पी इक्वल लाना है. सो फॉर दिस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, वी हैव टू प्रोड्यूस इट ए डी को हमें प्रोड्यूस करना है. सो हमने प्रोड्यूस कर लिया एंड ज्वाइन बी टू दिस पॉइंट. दिस इज पॉइंट वी आर एज्यूमिंग ई. सेम हियर फॉर एम ऑल्सो वी प्रोड्यूस टिल पॉइंट एन and join QN, join it to point Q. Clear? This one you can join from C also, so we are joining this, and here from R also. Okay, this one. Now after this, here construction. So what we assume here, or what we draw here, we produce AD एंड PM. AD और PM दोनों को प्रोड्यूस किया टू E एंड N, E और N तक प्रोड्यूस किया. सच दैट कंडीशन क्या रखी वो देखिए, कंडीशन हमने रखी है जो AD है दैट इज़ इक्वल टू DE, मिड पॉइंट, मतलब D मिड पॉइंट हो जाएगा AE का, एंड PM इक्वल टू MN, एंड PM इक्वल टू MN. इट इज़ एंड, ओके, एंड PM इक्वल टू MN. ये कंस्ट्रक्शन कर लिया दोनों. अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ. सो हियर फॉर दिस, फर्स्टली व्हाट इज गिवन, सिंस AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM. It is given equation 1. Here we assume it given. Now here we have to prove these two triangles congruent. Which one? We are proving triangles BDE and triangle ADC. This one. These two triangles we are proving congruent. So in triangle
ADC एंड ट्राइंगल BDE कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे? देखिए BD और CD इक्वल है, BD इक्वल टू CD इक्वल टू BD लिखिए पहले, क्योंकि ADC पहले लिया हमने, तो CD इक्वल टू BD बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। क्लियर? क्योंकि मीडियन दिया हुआ है तो D मिड पॉइंट हो गया। CD इक्वल टू BD एंड जो AD है विच इज़ इक्वल टू DE, इट इज़ बाई कंस्ट्रक्शन, now AD and DE are equal and angle D, this one vertically opposite equal, so angle ADC equal to angle BDE or EDB, जो भी लिखें whatever, BDE, this is vertically opposite angle, so therefore triangles are congruent, so therefore triangle ADC congruent to triangle BDE by which SAS, एक्चुअली यहाँ पे दोनों साइड्स पहले लिख गई हैं, एंगल बीच में आना चाहिए था, ठीक है, तो SAS। नाउ इफ दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दैट मीन्स वी कैन राइट देयर अपोजिट साइड्स, मीन्स ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो AC इक्वल टू BE, सो वी आर राइटिंग AC इक्वल टू BE। सिमिलरली क्या हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? ट्राइंगल QMN एंड ट्राइंगल PMR, और इससे भी हमें PR इक्वल टू QN मिल जाएगा। सिमिलरली PR इक्वल टू QN, ये मिल गया दोनों, ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 2 कह दिया, इसे इक्वेशन 3 कह दिया, ठीक है, ये दोनों इक्वल मिल गया। अब इसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ हम वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और, हमें AD और DE इक्वल दिया हुआ है, सिंस AD इक्वल टू D मिड पॉइंट हो गया AE का, सो क्या हम AD को हाफ ऑफ AE लिख सकते हैं? सिंस AD इक्वल टू DE, सो अगर हम AD प्लस DE लिखें तो क्या हो जाएगा? AE ना, AE इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD प्लस DE। आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि AD और DE इक्वल है तो D हाफ हो गया, मीन्स AD इज़ हाफ ऑफ AE, AD इक्वल टू DE, नहीं मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, या चलो प्रूफ कर देता हूँ, A इक्वल्स टू AD प्लस DE, DE को हम लिख सकते हैं AD, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 2AD। क्लियर? अब अगर हम यहाँ से AD को सेपरेट करें तो यहाँ से हम AD को लिख सकते हैं AE अपॉन 2, AE अपॉन 2, AE अपॉन 2। क्लियर है? और सिमिलरली अगर हम लिखें, सिमिलरली हम लिख सकते हैं PM इक्वल टू हाफ ऑफ PM, PM इक्वल टू PN अपॉन 2। क्लियर? ये दोनों वैल्यू हमने प्रूफ कर ली। अब हम जो हमें गिवन है, सिंस व्हाट इज़ गिवन, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, it is given. Clear? So now if it is given, now put the values here, AB upon PQ same रहा, AC upon PR, for AC we can write BE and for PR we can write QN, so यहाँ पे हमने रख दिया PR, AC की जगह क्या रखना है हमें? BE, सॉरी, AC की प्लेस पे हमने रख दिया BE अपॉन QN, here it is QN इक्वल टू AD। अब AD को हमने क्या प्रूफ किया था? देखिए AE अपॉन 2, तो AD की जगह हमने रख दिया AE अपॉन 2 एंड अपॉन PM को लिख दिया हमने PN अपॉन 2। क्लियर? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिल गया, और वी कैन राइट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BE अपॉन QN इक्वल टू AE अपॉन PN। ज़रा देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स के ये तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, मीन्स ये ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल PQN, ABE सिमिलर टू ट्राइंगल PQN बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है, तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, मीन्स ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, मीन्स वी कैन राइट एंगल BAE, देयरफॉर एंगल BAE इक्वल्स टू एंगल QPN, एंगल QPN। Similarly
वी कैन प्रूव, देखिए सिमिलरली अगर हम इन ट्राइंगल्स को भी प्रूव करते हैं, ट्राइंगल ए सी ई और ट्राइंगल पी आर एम, तो ये एंगल्स भी इक्वल आ जाते हैं। इक्वल मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल एन पी आर, एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल एन पी आर। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन मान लिया। थर्ड हुई है, चाहो तो इन्हें भी आप मान सकते हो फोर्थ फिफ्थ, वैसे यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, या लिख ही दो, इसे लिख दो आप फोर्थ और इसे लिख दो आप फिफ्थ। ठीक है, और इसको फिर लिख दिया मैंने सिक्स्थ, इसको लिख दिया सेवन्थ। अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन से वैल्यू रखी थी ना, उन्हें लिख दीजिए। किस किस से आपने लिखा है? फ्रॉम इक्वेशंस, देखिए बी ई और क्यू एन किससे लिखा है आपने? सेकंड और थर्ड। फ्रॉम इक्वेशंस 2, 3, 4 एंड 5, इन सारी इक्वेशन से आपने वैल्यूज़ पुट की हैं। नाउ अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, सो ऑन एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। सो एंगल बी ए ई प्लस एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी एन प्लस एंगल एन पी आर, दोनों को प्लस करिए। देखिए बी ए ई प्लस ई ए सी क्या मिल गया? बी ए सी। सो इट इज़ एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल, ये मिल गया आपको क्यू पी आर, एंगल क्यू पी, और दो साइड का रेशियो तो दिया ही है जो आपने गिवन था, उसमें से दो पार्ट ले लीजिए। तो एंड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर फ्रॉम इक्वेशन 1। स्टार्टिंग के दो पार्ट्स यहाँ से ले लिए। ठीक है, इसको थर्ड को छोड़ दिया। अब ये ट्राइंगल दोनों देखिए ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हो गया बाई एस ए एस। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस criteria. Clear? This question is done. Okay, now we will move on 15th question. Next question, that is 15. Here a vertical pole of length 6 meter casts a shadow of 4 meter. There is a vertical pole of length 6 meter. एक vertical pole है जिसकी हाइट 6 मीटर है और वो शेडो कास्ट कर रहा है 6 मीटर। मीन्स ये 6 मीटर है तो शेडो कितनी आ रही है? 4 मीटर। क्लियर? वर्टिकल पोल है, मैं इसे ए बी सी कह दिया। नाउ 6 meter cast a shadow of 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. Tower है like this, we are assuming. So here its shadow is given, that is 28 meter. It is given 28 meter, and now we have to find the height of this tower. Clear? It is P Q R. See now, it is tower एंड वन द थिंग इज पोल। फर्स्ट पोल है, सेकंड टावर है। दोनों परपेंडिकुलर ही खड़े होंगे, हमेशा स्ट्रेट ही खड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी टेंडेंसी है, और जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हमेशा सेम होता है। मीन्स अगर हम यहाँ मान लें जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे भी जो भी सन होगा, दोनों ही केस में जो सन का एलिवेशन होगा, ठीक है, यहाँ सन है और यहाँ भी सन है, तो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो अगर एक ही टाइम पे हम देख रहे हैं तो वो एंगल सेम होंगे हमेशा। ठीक है, मीन्स एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं हियर इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल, पहले पी क्यू आर ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी होगा, क्यू इक्वल टू एंगल बी। ये एंगल हमेशा 90 होगा, ईच 90। पोल और टावर दोनों स्ट्रेट ही खड़े होंगे। ठीक, और एंगल आर इक्वल टू एंगल सी। अब ये क्यों होगा एंगल? सिंस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट सेम टाइम इज सेम टाइम में एंगल ऑफ एलिवेशन में से इक्वल होगा, सेम होगा। तो एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई डबल ए, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल कर दीजिए, मीन्स पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन बी सी। पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, एच मान लिया हमने,
now here PQH upon AB is given. AB is PQ upon AB, that is 6 cm. QR is 28 मीटर अपॉन BC is 4 मीटर. नाउ 6 को उधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, 6 को उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा 28, 4 7 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो H इक्वल्स टू आ जाएगा 6 7 जा 42 मीटर. तो इसकी हाइट होगी 42 मीटर. नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 16. क्वेश्चन नंबर 16. If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, again there are two triangles, ABC and PQR are two triangles, A, B, C, P, Q, R, and these are the medians, na? D, median M. Clear? Where triangle ABC is similar to triangle PQR, then prove that AB upon PQ equals to AD upon PM. Same question we did in question 12. Clear? So here given AD and PM are medians and triangle similar, and triangle ABC similar to triangle PQR. Now we have to prove AB upon PQ equals to AD upon PM. Clear? Now proof. Construction there is not needed. So here firstly triangles are similar, it is given triangle ABC PQR are similar. So here since triangle ABC similar to triangle PQR, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और एंगल्स भी इक्वल होंगे. क्लियर? तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR equals to AC upon PR, and angles are equal, so angle B equals to angle Q, and all angles are equal, but we need only angle B and angle Q equal. Clear? So if angle B and angle Q are equal and the sides ratio are equal, clear? So for this here AD and PM are the medians. Since AD and PM these are by CPST, since AD and PM are medians, अगर ये medians हैं इसका मतलब D और M क्या हो गया? मिड पॉइंट्स, यानी कि हम BC को क्या लिख सकते हैं? therefore BC equals to 2BD and QR equals to 2QM, क्योंकि मिड पॉइंट है. क्लियर? नाउ इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया और इसको इक्वेशन 2 कह दिया. क्लियर? सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ज़रा देखिए, अगर हम इक्वेशन 1 यहाँ पे यूज़ करें तो इक्वेशन 1 से हमें तीनों साइड का रेशियो इक्वल मिल रहा है, लेकिन हमें थर्ड साइड के यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे केवल AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR. क्लियर? और BC अपॉन QR, BC को हम लिख सकते हैं 2BD, सो फॉर दिस वी आर राइटिंग 2BD अपॉन 2QM, it is equal to AB upon PQ. 2 से 2 कैंसिल, that means we got AB upon PQ equals to BD upon QM. अभी दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया. देखिए AB upon PQ equals to BD upon QM, and angle B equals to angle Q, and angle B equals to angle Q, which is proved above in equation 2. From equation 2, that means these triangles are similar. So triangle, therefore triangle ABD similar to triangle PQM by SAS. Now if these two triangles are similar, then their corresponding sides are equal. That means we can write therefore AB upon PQ equals to AD upon PM by CPST. This is completed. This exercise is now complete.